أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. My dear doctors and house officers and final year students who want to know about the very common problem, which is you come day to day basis. First of all, I see that this knowledge which I want to deliver, it is a very big task. To me to speak on a disease which is called the chronic diseases related with the liver, I will take 3 to 4 or rather 5 hours continuously to speak on, to clear my view about this. This is not a conference, this is the tutorial. And one of or two of you has asked that they are working in the wards where the 80% of the cases belonging to the liver disease in one context or another context. So I am taking it, bit by bit. If knowledge comes in bits, you cannot understand, for example, Quran in one go. It's not possible. It's a bit by bit. That is also about the Iman is concerned. It also comes in bits, small. That is why the area which is covered by the Muhammad, may peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, in the Makkah, there are small, verses are given, only small verses. But the people, when then become mature, the verses are greater in length. So the Makki surah are small verses. The Madani surah have large verses. That is why the Sahaba Ikram gain knowledge in this fashion. And that is very correct way to do it. So knowledge comes in bits. So adding further before, which I have said, that is, you should understand what is cirrhosis. Most of the answers coming from different areas of the world is that it is the chronic disease of the liver ending in fibrosis and leading to the complications. This was the answer given, most of them. This is wrong, because hepatic fibrosis is another thing, and cirrhosis is another thing. Cirrhosis means that it is the inflammation of the hepatocytes, rather continuous inflammation. That is called chronic hepatitis, that is what. So it is the inflammation of the hepatocytes, number one, plus destruction of the hepatocytes, number two. Number three, because destruction occurs at the site, this is a time where the regeneration occurred process will take time. So the fibroblasts invade that area and fibrosis occurs there. So अब तक क्या हो गया? It is the inflammation of the lungs. You have to have got this the evidence of it. Number two, evidence of the destruction of the hepatocytes parallel to it, and the invasion of the fibroblasts means fibrosis, and then now the activation occurs for the hepatocyte to regenerate, but in the wrong fashion. It is abnormal regeneration, it is not normal regeneration. Because fibroblast is there, fibrosis already occurred, and you are also generating the destroyed hepatocytes. So abnormal regeneration of the hepatocytes. There are 4 components which comes in the cirrhosis.
If one is missing, this is not cirrhosis. Remember this one. That is why I have divided and previously told about you what is mean by acute hepatitis, what do you mean by chronic hepatitis, what do you mean by the portal hypertension, what do you mean by cirrhosis, and what do you mean by the cirrhosis, and then we call the compensated or decompensated cirrhosis, and then further going the end stage as the hepatocellular carcinoma. So, house officer facing the portal hypertension in hospital, part 2. I am Professor S.R.E. Heather and I am visiting professor of medicine, so-called at the JSMU. Now remember this thing, which is very, very important. What is the portal system of the body? One is in the intra-abdominal cavity. That is one of the most important and very, very, you can say, efficient type of a system which is generated by the Almighty Allah. How a portal vein is formed? Remember, a portal vein is formed by splenic vein. Now, splenic vein, look this splenic vein, which is draining actually some of the gastric veins also, not all. Splenic vein is also draining the inferior mesenteric vein, which is the drainage part of the inferior mesenteric vein is part of the transverse colon and the descending colon up to the rectum. It actually admits here at the back of the neck of the pancreas with the splenic vein. Drainage of the splenic vein is from the spleen mainly, but also some of the gastric veins are also draining directly into the splenic vein. So output is here is, this is the output which is here, and is directly going to the liver because absorption occurs in these places. That is why the portal system is there. आप कुछ चीज़ खाएंगे उसको टाइम लगेगा, absorb होगी. अगर इसमें सिस्टमिक वेन सिस्टम होता है वो डायरेक्टली पहुंचा देता, तो उस तरह से कैटाबॉलिज्म ही नहीं होगा. कोई क्रिप्स एटिलसाइक्लिन नहीं बना सकता, कोई पेंटोज पाथवेज नहीं बना सकती, आप कुछ भी नहीं कर सकते. अल्लाह ने एक निज़ाम क्रिएटेड क्या, इसको याद रखिएगा कि ये क्या चीज़ है. जब आप जो है ना समझेंगे बिट बाय बिट क्या है, फिर ये असेंड करती है, ऐसे आपको पता है अब, और यहाँ पे जो है वो ग्रेटर मोमेंटम की जो लेयर्स हैं लेसर मोमेंटम के साथ यहाँ पे उसके अंदर से रन करती है पोर्टल वेन. ये पोर्टल वेन कुछ डायरेक्ट ड्रेन करती है गैस्ट्रिक वेन्स, दे आल्सो ड्रेनिंग हियर एंड इट डिवाइड्स इनटू टू, left branch and the right branch. Left branch is draining the left lobe, most of the left lobe, not all. The right branch is draining the right lobe of the liver, but not all, predominantly. In the same fashion, the right side is also drained by a vein, which is a cholecystic vein, which is draining the gallbladder also. So it is also draining the gallbladder, this right portal tract. Remember the superior mesenteric vein. It is formed by the superior mesenteric vein, which is draining directly into the portal vein. Look, this continuation. So therefore, lower down the superior mesenteric vein, which is draining all of the lower GI and the cecum and the ascending colon, transverse colon, all, and then it is going into the portal vein. So the portal vein is formed by this in this fashion. This is the common portal vein now. This is the portal vein here, is a common portal vein. A major portal vein, you can say.
how these veins are formed. Now it is the right and the left branches of these, and they are distributing accordingly into the left and the right lobe of the liver, and they are draining the liver sinusoids to the liver sinusoids. That is, they are the sinusoids they are the modified form of the venous structure, which is very very near to the palisade of the hepatocytes. So all of the exit of the hepatocytes are coming into the sinusoid, and sinusoid then into the branches of the left branch or the right branch. Just like this. So going actually, this is the condition is here. It is the draining part of the small intestine, the stomach, up to the esophagus, and lower down to the rectum. All are draining, and blood is drained then into this. And afterwards they are combining again. Afterwards, as the post-sinusoidal, sinusoidal, and then the post-sinusoidal condition in which these veins are mixing to form the hepatic veins, and hepatic veins are draining into the inferior vena cava in this fashion. After the liver is passed by many processes, then the veins are formed, which are called as the hepatic veins, and they are draining. Right and the left hepatic veins are draining into the main tract, that is the inferior vena cava. Repeat it many times, if you can understand the problem, what is going on actually. So this is the formation of the portal vein. Remember that this is important as part 1 examination, FCPS. And this is also important in the FCPS part 2, where they have been asked how portal vein is formed. For the in surgical and allied, a candidate has been asked how the portal vein is formed and what are the drainage sites, etc. अब बाद में जब बाहर निकला तो वो कह रहा है यार ये क्या सवाल कर रहे हैं. मैंने तो उनसे बोल दिया जी मुझे तो याद ही नहीं है. मैंने कहा भाई ये तो फिर आपने अपने आप को कुलाड़ा मारा है, आपको आना चाहिए था. तो ये मेडिसिन एंड अलाइड में भी आएगा, और सर्जिकल अलाइड में भी आएगा ये. और ये जो इसके बगैर जो है ना, वो जो बोला जाता है ना पोर्टल हाइपरटेंशन, तो वो समझ में नहीं आएगा. हाइपरटेंशन क्या होगा? या तो फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगा, या ये करें कि आप यहाँ इसको ब्लॉकेज देते हैं यहाँ पे, तो जो प्रॉक्सिमल है यहाँ पे उसमें टेंशन बढ़ जाएगी. या यहाँ ब्लॉक करें, इसको यहाँ ब्लॉक करें, या यहाँ ब्लॉक करें, या यहाँ ब्लॉक करें, या साइनस लेवल पे ब्लॉक करें. अब ये ब्लॉकेज इन लिवर जो है वो या तो प्री साइनोसाइडल हो सकता है यहाँ पे, पोस्ट साइनोसाइडल हो सकता है बाद में, और दरमियान में साइनोसाइडल. 3 टाइप का ब्लॉकेज लिवर के अंदर है, और बाहर तो है ही है ब्लॉकेज, जो कभी भी मैंने पूरा बता दिया आपको. ये ड्रेनेज सिस्टम है इसका. कहीं पे भी ब्लॉक होगी तो इससे प्रॉक्सिमल जो है प्रेशर बढ़ जाएगा. और यहाँ पे अगर आप करेंगे ब्लॉक तो इससे प्रॉक्सिमल जो है प्रेशर बढ़ जाएगा. इसको तो कुछ नहीं होगा, इसकी तो स्कीमिया हो जाएगा एक तरह से कि आपके पास जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है वो नहीं पहुँच पाएंगे. इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और लोग नहीं समझते इसको. इसके बगैर पोर्टल प्रेशर नहीं बढ़ा सकते आप. तो कंपनसेशन भी होता है इसके साथ. या तो ये कि आप फ्लो बढ़ाएं या इसकी ऑब्स्ट्रक्शन करें. कैलिबर को छोटा करें, इसका बिल्कुल स्टेनोसिस करें, या जो ब्लड जा रहा है वो बहुत थिक हो, वो स्टेसिस कर रहा है, वो आगे जाने नहीं दे रहा, प्रेशर प्रॉक्सिमली बढ़ जाएगा. या ये सॉल्ट पे बढ़ जाएगा, या प्री साइनोसाइड पे बढ़ जाएगा, या पोस्ट साइनोसाइड पे बढ़ जाएगा. ब्लॉकेज जहाँ पे भी होगा उससे प्रॉक्सिमल बढ़ जाएगा प्रेशर, वो ट्रांसमिट होगा नीचे तक. ना देखिए इसके इफेक्ट्स जो आ रहे हैं वो किस तरह आ रहे हैं, इसके बढ़ने से क्या मसले पैदा हो गए. तो पोर्टल हाइपरटेंशन occurs in many conditions. One condition is the liver diseases, in which the sinusoids are being compressed because of the 2 things, that is fibrosis or nodular regenerating
regeneration occurs because of the cirrhosis. सिरोसिस उसका मुकम्मल होगा जब 4 चीज़ें उसमें आप प्रूव करें तो फिर सिरोसिस होगा। खाली फाइब्रोसिस करने से काम नहीं चलेगा। फाइब्रोसिस अगर होगा भी तो क्या साइकाट्रिशियन कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा। इतना जो सीवियर प्रेशर जो क्रिएट इसके अंदर आप करने वाले हैं उसके लिए सिरोसिस होना ज़रूरी है, लिवर की जहाँ तक ताल्लुक है। इसके अलावा भी कॉजेज हैं। आप पोर्टल वेन को ब्लॉक कर दें, इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ब्लॉक करें, ये ब्लॉक हो गई अगर तो फिर ये प्रॉक्सिमल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसको जो है ना नापने का तरीका है कि ये कैसे बढ़ेगा, सवाल ये पैदा होता है। हमें तो नहीं पता ना, तो कुछ जो है ना वो है क्लिनिकल पैरामीटर्स और कुछ जो है वो जो पैरामीटर्स हैं इसके वो क्या हैं, वो लैब पैरामीटर्स। आज यहाँ तक इस बात रखिएगा बस, तो ये फिर आपकी समझ में आ जाएगी बात अच्छी तरह। तो इसके अंदर जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं उसके लिए इसको समझना ज़रूरी है। तो पोर्टोकेवल एनास्टोमोस कि पोर्टल वेन कहाँ कहाँ पे एनास्टोमोस करती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ। अब आप ये देख लीजिए कहाँ कहाँ करती है। सबसे पहले जो है ना वो लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस को ले लेते हैं। तो लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस जो है उसके अंदर जो है ना सिस्टमिक वेन्स भी हैं, जो ब्रांच है फ्रेनिक वेन की, वो यहाँ पर इसके साथ जो होती है वो कॉमन पाथवे प्रोड्यूस करती है। स्टमक के अंदर खुद भी गैस्ट्रिक वेन्स, मैंने अभी भी बताया, जो स्प्लेनिक वेन में हो रही है वहाँ पे भी एनास्टोमोसिस होता है। 2, तीसरा ये है कि पैराअम्बिलिकल वेन्स और लिगामेंट टेरिस जो हैं वो सिस्टमिक वेन जो इंफीरियर वेना की वजह से इनडायरेक्टली यानी फीमोरल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं एपिगैस्ट्रिक वेन्स कहलाती हैं, वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं अम्बलाइकस के ऊपर, तो वहाँ पे भी होता है एनास्टोमोसिस। फिर एनास्टोमोसिस होता है ट्रांसवर्स कोलोन जहाँ एंड होता है, जैसे लेफ्ट और राइट पे जो है ना फ्लेक्चर्स है, वहाँ पे भी जो है ना वो कम्युनिकेशन होता है। और कहाँ होता है, और फिर वहाँ रेक्टम में होता है। रेक्टम में क्योंकि सिस्टमिक वेन्स भी हैं, रेक्टल वेन्स, और आप ये जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन का, वहाँ से एनास्टोमोसिस होता है। अब बहुत सीवियर हाइपरटेंशन होगा तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो ब्रंट आएगा वो इस जगह पे आएगा, जैसे इसोफिगल जंक्शन पे, गैस्ट्रो इसोफिगल जंक्शन पे, और यहाँ पे जो है ना वो वेराइसिस डेवलप हो जाएंगे। और वेराइसिस तक तो ठीक है, लेकिन वो रप्चर हो जाएंगे तो वो फिर ब्लीड कर जाएंगे, और ब्लीड कर जाएंगे तो फिर हेमेटोमेसिस हो जाएगी। लिहाजा इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा कि प्रेशर बैक प्रेशर दे रहा है ये, तो ये जो है ना इन्वॉल्व होगा सबसे ज़्यादा। फिर दूसरी चीज़ इन्वॉल्व इसमें ये भी हो सकती है कि जो स्टमक की जो वेन्स हैं, मैंने आपको बताया बहुत सारी वेन्स होती हैं, वो भी प्रेशराइज हो जाएंगी। ये तो वेराइसिस एस्ट्रोफिकल वेराइसिस है। फिर गैस्ट्रिक वेराइसिस भी हो सकता है। स्टमक के अंदर जो कि ग्रेटर कर्वेचर उसके पास जो एनास्टोमोसिस हुआ है, इन दोनों का सिस्टमिक वेन्स वहाँ भी आई हैं और वहाँ पे भी एनास्टोमोसिस हुआ है, वो इनलार्ज हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, तो वो गैस्ट्रिक वेराइसिस भी होता है। ये भी ख्याल कीजिएगा, खाली इसोफेजियल नहीं होता, ये भी होता है, ये कॉमन है। यानी इसका नाम हेमेटोमेसिस होगा, या इससे होगा या इससे होगा। फिर ये हो जाए कि लिगामेंट टेरिस के ऊपर जो अगर बहुत प्रेशर होगा तो फिर डायलिटेशन हो जाएगा अराउंड दी अम्बिलिकस, दैट इज कॉल्ड कैपुट मेडुजी, लेकिन वो बहुत कम होते हैं चांसेस इसके। इसके ऊपर डिस्कशन भी करना पड़ता है हमको एनाटॉमी के साथ, तो वो आ जाएगा अप्लाइड एनाटॉमी, जब आपको पढ़ाएंगे तो बता भी देंगे। अभी तक तो वो रखे हुआ जो आप बोर्ड में काम करें तो समझने के लिए। और ज़्यादा प्रेशर में माउंट करेगा तो फिर वो यहाँ रेक्टम में भी इसका इफेक्ट आएगा, और वहाँ पे भी जो है ना इसी तरीके से वेराइसिस डेवलप हो जाएंगे, यानी इंगॉजमेंट हो जाएगा, वो रप्चर हो सकता है, हेमरॉइड्स डेवलप हो जाएंगे दूसरे महीने में। तो इसी तरह से यहाँ से भी ब्लीडिंग हो जाएगी, पैरेक्टल ब्लीडिंग हो जाएगी, ऊपर से भी हो जाएगी, नीचे से भी हो जाएगी, दोनों जगह से ब्लीडिंग हो जाएगी। इसको समझने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी थी, इसमें मैंने अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा गौर करें मैंने क्या बोला है आपसे। फिर एक जगह और भी होती है, वो ये होती है कि जो ग्लिसरीन कैप्सूल है आपका जो लिवर के ऊपर होता है, वहाँ पे भी सिस्टमिक वेन्स
मौजूद होती हैं, सप्लाई कर रही होती है, और ड्राइव हो रही होती है फ्रेनिक वेन्स। फ्रेनिक वेन जो सिस्टमिक पार्ट है वो कंबाइन करती है इसके साथ, यानी सिस्टम के साथ, पोर्टल सिस्टम के साथ एनास्टोमोस कर जाती है। इस तरह से लिवर के जो एंड्स जो कहलाते हैं, जहाँ पे एनास्टोमोसिस हुआ है, वहाँ पे वो क्या होता है कि वो इंगॉर्ज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इंगॉर्ज इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि वो रप्चर हो जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है लिवर के चारों तरफ से, वीपिंग ब्लड फ्रॉम द लिवर बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ दीज एनास्टोमोसिस, हाई प्रेशर एनास्टोमोसिस। ये भी जो है ना एक जगह है, छठी हो गई जगह ये, जहाँ पे ये सिस्टमिक वेन्स और पोर्टल वेन का दोनों का मिलाप हुआ है, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, या सिस्टमिक और जो पोर्टल एनास्टोमोसिस। इसलिए इस बात को याद रखते हुए प्रेजेंटेशन ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन इन क्लिनिकल सेटिंग्स कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये तो आपको क्लिनिकल बात बता दी ना। या तो ये कि अंदर पड़ा हुआ है, साइलेंट है, इसको तो हम अभी बताते हैं कैसे पकड़ते हैं। दूसरा विराशल ब्लीडिंग है, या तो होगी, या फिर हेमराइड्स हो सकते हैं, बहुत सीवियर हो तो कैपर मेडूजी होंगे जो कम नज़र आते हैं, या फिर कि ये प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि वो एसाइटिक प्रेशर जो है, यानी ऑनकोटिक प्रेशर से वो ज़्यादा भारी हो जाएगा और ऊज कर जाएगा फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज एसाइटिस विल कम। ये ट्रांसलेट होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाया आपने, अभी तो ऑनकोटिक प्रेशर तो नहीं बढ़ाया। अगर आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाएंगे तो वो ऊज करने लगेगा और बाहर निकल आएगा, और बाहर निकलने के बाद कलेक्ट हो जाएगा। ये भी पकड़ सकते हैं आप क्लिनिकल, ये भी पकड़ सकते हैं क्लिनिकल, ये भी पकड़ सकते हैं क्लिनिकल, ये भी पकड़ सकते हैं क्लिनिकल। साइलेंट अगर है किसी को, एक पेशेंट है, आपने देखा कि लिवर स्मॉल है उसका, ये वो, लेकिन आपको कुछ और नहीं मिल रहा, उसको पकड़ने के लिए फिर आपको टूल्स एग्जाम में चाहिए। इसका एक टूल्स जो हम करते हैं ना पाकिस्तान में इस्तेमाल, वो तो हम बता देते हैं आज, और जो हम बाहर करते हैं वो फिर कल बताया जाए, फिर फिलहाल के साथ बात कीजिए। मैंने आपसे कहा ना थोड़ा थोड़ा करके करें तो आपकी समझ में आ जाएगी बात। साइलेंट पकड़ते हैं, असल बात यही होती है। एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो देखने वाला देखे जा रहा है अल्ट्रासाउंड ऊपर से, जब भाई के पहले तो लिवर का इको टेक्सचर देखो, वो आपको देखना आना चाहिए कि किस किस्म का टेक्सचर है उसका, सोनिक टेक्सचर कहते हैं उसको, वो डिफ्यूज़ है, वो डिफ्यूज़ नहीं है, वो पैची है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपको बता देगा कि ये जो है ना एक्चुअली इसके अंदर फाइब्रोसिस हुआ है, इसके अंदर या तो फिर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, या इसके अंदर जो है ना सीरोटिक चेंजेस नज़र आ रही है। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले पर डिपेंड करता है कितना उसको आता है, और हमें इसे पढ़ के इस तरह रहे होते हैं डायरेक्टली ऊपर से नीचे जाएंगे, सीधे इन्फ्लुएंस को पढ़ा जान छुड़ाई, नहीं ऐसा नहीं है। अब दो चीज़ें और आप मांगें उनसे, अगर उन्होंने नहीं दी है तो आप मांगें, कम से कम दो चीज़ें। आप पोर्टल वेन डायमीटर मांगें उनसे। नॉर्मली जो होता है नॉर्मल प्रेशर पे होता है ये 1.4 सेंटीमीटर पोर्टल वेन। अगर ये 15 हो गया तो इसका मतलब ज़्यादा है, अगर ये 17 है ये बहुत ज़्यादा है, 20 है तो बहुत ज़्यादा है। डायमीटर की बात हो रही है, इनडायरेक्ट बता रहा है ये डायलेटेशन हो गया है, इसका मतलब है कि ऊपर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। या फिर इससे पहले जो है ना स्प्लेनिक वेन होती है 0.9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.8-0.9 सेंटीमीटर या 9 मिलीमीटर। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब स्प्लेनिक वेन जो है ना ब्लॉक हुई है, इसकी वजह स्प्लेनिक वेन है, एसाइटिस की पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, ये स्प्लेनिक वेन की वजह से हुई है। और उसकी कई कॉजेज़ हैं, उसमें से ज़ाहिर है ये तो खुद जो है ना वो जो ब्लड जो है वो ठीक था, वो कई कंडीशन में होता है, वो जितने भी आपकी माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर वो करते हैं, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर वो करते हैं, मल्टीपल माइलोमा है वो करता है, फिर कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है वगैरह वगैरह। उससे जो है ना स्प्लेनिक वेन का प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ से जो है ना वो शुरू हो जाता है, ऊजिंग शुरू हो जाती है। तो आप इसलिए दोनों चीज़ों को मांगते हैं, पोर्टल वेन को भी का डायमीटर मांगे और स्प्लेनिक वेन का डायमीटर भी मांगे।
फिर आप जो है ना देखें पूरे एब्डोमेन में उसने कोई आपको एविडेंस दिया इस बात का कि कलेक्शन ऑफ पैराकोलिक गटर हुआ है या राइट इलिक लेफ्ट इलिक फोसा पे किसी किस्म का भी कोई फ्लूइड मिला है। लिखते हैं वो मिनिमल फ्लूइड सीन, और कहाँ पे मिला है ये नहीं लिखते। तो वो जगह भी तो उनसे पूछे ना भाई वो कौन सी जगह है जहाँ को आपको मिला है, ये जो फ्लूइड मिला है कहाँ मिला है, क्योंकि ग्रेविटेट होके आना चाहिए कहाँ पे, राइट इलिक फोसा लेफ्ट इलिक पे पैराकोलिक गटर्स, ये सारी चीज़ें उनसे पूछे हैं। अल्ट्रासोनोग्राफर से तो वो बताएगा, फिर आप लिख के देंगे मुझे ये चीज़ें भी चाहिए, तो साइलेंट वाला जो बंदा है वो सामने आ जाएगा। फिर इसके पीछे टियोलॉजी पे चले जाएं, मालूम करें भाई हुआ क्या है। बाकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो तो आपके सामने आएंगी और आ रही हैं, मगर आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे उसको। लिहाजा अब वो कंडीशन ये तो हुआ है जो हम करते हैं पाकिस्तान में। सेकंड वाला जो है ना, जो कुछ लोगों ने किया भी कोशिश की है, उन्होंने क्या किया कि पोर्टल वेन के अंदर डायरेक्ट प्रेशर मेजरमेंट करने की कोशिश की है बाई कैनुला। तो नॉर्मली जो होता है सेंटीमीटर ऑफ वाटर में होता है, ये 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक होता है। अगर 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर पोर्टल वेन का ज़्यादा है, लेकिन ये कैनुला डाल के पता चलेगा। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। उसको तो आप रहने दें, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत मुश्किल इन्वेस्टिगेशन है। ये AQH के अंदर जो कॉस्ट करते हैं उसको कैनुलाइजेशन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। आप कलर डॉपलर इस्तेमाल करते हैं प्रेशर देखने के लिए, यानी उसकी प्रेशर जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ, इनडायरेक्टली पता चल जाएगा आपको। वो भी कॉस्टली प्रोसीजर है। इससे भी ज़्यादा हायर जो है ना, ये साइलेंट यहाँ लिखा हुआ, इससे भी हायर जो है ना टेक्निक इस्तेमाल की गई हैं, जो कि बाद में आपसे बताएंगे ताकि समझ में आ जाए कि ये आजकल कैसे पता चलाते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन है इस पेशेंट में या नहीं है। सवाल क्वेश्चन मेरा ये क्यों है, वो तो मैंने बात बता दी पहले। इसको डिटेक्ट करना है, क्लिनिकल पैरामीटर बता दी। अब लैब पैरामीटर की बात हो रही है। क्लिनिकल पैरामीटर वाले तो माशाल्लाह बहुत ही होशियार लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि पेशेंट को एग्जामिन करें। वो तो डायरेक्टली जो होते हैं डिपेंड कर रहे होते हैं लैब के ऊपर। अल्ट्रासोनोग्राफी आजकल CT एब्डोमेन में भी करते हैं, उससे भी पता लगाते हैं, और डॉक्टर करते हैं उससे भी पता लगाते हैं, और इससे आगे भी जो चले गए हैं वो। और वो जो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस जो आप करते हैं MRI, तो MRI जो है ना ये भी होता है, एंजियोग्राफी भी होती है, इसकी वेनोग्राफी भी होती है, पोर्टोवेनोग्राफी भी होती है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस पोर्टोवेनोग्राफी भी कर सकते हैं आप, मगर कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। 40,000, 50,000, 60,000, अब इतने आप पैसे लगा रहे हैं। इससे बेहतर है हम तो इससे जो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं पॉसिबल, कम से कम में वो ये है। इससे हायर तरीके भी मौजूद हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की डिटेक्शन के। इस पर अगली दफ़ा जो है ना, जो अगला सेशन होगा इंशाल्लाह आई विल डू इट। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, और इसको आप दोहराएं 2-3 दफ़ा प्लीज़, एंड देन वी गो फॉर द थर्ड सेशन। तो उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आ जाएगी, इसकी मैनेजमेंट हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी, क्रिस्टल वाटर क्लियर। यू वांट दिस on the safe side, you are also appearing in the part 1 examination where they'll be asked, always asking these questions in the MCQs। वो करना ही करना है, इसलिए आपको सीखना तो लाजमी है ना। इसको जल्दबाजी में इसको ज़ाय ना करें, मैं आपसे मशवरा दूँगा। इसका मैनेजमेंट में भी समझ में आ जाएगा आपकी कौन सा मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा इसके अंदर, साइलेंट में क्या करते हैं, एक्टिव में क्या करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपको आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। उसका फीडबैक दीजिएगा ज़रा।